के 2 पुलिस वाले दिखे हैं एंड नो फीमेल कॉप्स। जब मैं एक्सप्लोर करी थी मैंने नोटिस किया कि एक बंदा वाइट गाड़ी में फॉलो कर रहा था घूम घूम के। ज्यादा बोल रहे हो भैया। I'm from Punjab, so I do have some preconceived notions that I hope are broken. Like I hope the myths are busted in a nice way. I really truly hope that it's a city that makes me feel comfortable at least to a certain extent. I think कहीं ना कहीं एक होप थी कि यार होम ग्राउंड थोड़ा सेफ फील हो तो अच्छा लगेगा। सत श्री अकाल, हम हैं अमृतसर में and we are here to do an episode of 2 AM stories to see how safe Amritsar is for women. So honestly, Amritsar was very different from what I imagined it to be. Like, you know, मैं शॉक हो गई थी कि दुनिया बदल गई है और हमें पता ही नहीं है. So I think that happened. पंजाब में small towns में people being out late in the night is not normal. It's not just frowned upon. It's that women in particular avoid. And cut to we go there and वहाँ पे लोग बाहर घूम रहे हैं. And it's not just that. It's the fact that when I think of Punjab, I'm thinking more dark spots. Cut to what I see is there is so much light everywhere. यार honestly ना मुझे यहाँ पे वॉक करते हुए थोड़ा टाइम हो गया है. And what I've realized is there are a bunch of things that I've just realized. One of it is कि यहाँ पे बहुत lit जगह है, like in terms of infrastructure. I mean not lit. I mean of course lively है. The one thing I really liked in that area was that हर जगह पे cops थे यार, पुलिस वाले. मतलब like if you see right there behind me, and the cops are around. Like it's not that you won't see them. Like there's one behind me right now. I like the fact that ये लोग proactively घूम रहे हैं यहाँ पे, but मुझे भी फीमेल कॉप नहीं दिखी कहीं पे भी, तो वो थोड़ा सा अजीब लगा. Now I know कि lot of states में होता है कि फीमेल कॉप्स को नाइट ड्यूटीज पे नहीं रखते हैं. Like मुंबई में there is a concept of a निर्भया squad. There is a concept कि एक फीमेल कॉप होती है हर पेट्रोल कार में, या एटलीस्ट कहीं पे अगर नाकाबंदी है कहीं पे भी मतलब फीमेल कॉप रात को दिख जाती है. वो नॉट कंपेयरिंग Amritsar to Mumbai, but in terms of women's safety, like just a thought, wouldn't women feel more safe if there was a female cop? अभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई ना कोई देख के तो जा रहे हैं, कोई ना कोई थोड़ा सा ऐसा टर्न करके दिख रहा है. There's a little shrug and there's that, you know as women हमें पता होता है when somebody just looks at you in a certain way, and ये चीज़ हो रही है कि they just look at me and it's that look कि मुझे पता है वो deliberately देख रहे हैं मुझे, but because उन्होंने actually 7 seconds से ज़्यादा देखा but कुछ किया नहीं, तो I can't really react to it. So ये तो हो रहा है. So let's see आगे क्या होता है, because ये जगह तो काफ़ी not like अमृतसर है. It's looking very forward. I think a lot more modern, very unlike a small town that you expect. So इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पंजाब काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है बाय ट्रेन्स, और ट्रेन में सिर्फ आदमी ट्रैवल नहीं करते, हम जैसी औरतें भी ट्रैवल करती हैं. तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम रेलवे स्टेशन जाए और देखें कि कितना सेफ़ है रेलवे स्टेशन. अगर मुझे कभी रात को या किसी भी औरत को कभी रात को लेट कोई ट्रेन पकड़नी पड़े या स्टेशन पे वेट करना पड़े बिकॉज ट्रेन डिले चल रही है, या फिर
जस्ट जनरली ट्रैवल करना हो यार, कि वहाँ पे लाइट्स हैं, वहाँ पे पुलिस है, सीसीटीवी है, सिक्योरिटी है या नहीं है. सो चलते हैं रेलवे स्टेशन. चल. So when I went to the railway station, बाहर का एरिया, द पब्लिक स्पॉट्स, द फुटपाथ, वहाँ पे लाइट्स एंड ऑल थी, which is a plus point. But it's just that when I went to the booking office to get my ticket, I saw कि यार बहुत सारे लोग थे नीचे सो रहे थे, and I don't have a problem with that because I know ये हर जगह होता है. But it really felt uncomfortable because it was overcrowded to a point where मुझे चलते वैसा लगा था what if somebody just touches me inappropriately, because लिटरली चलने के लिए भी इतनी सी जगह थी कि बहुत लिमिटेड स्पेस थी. तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट आई फेल्ट अ लिटिल अनकंफर्टेबल अबाउट. बट तो आई रिमेंबर जब मैं टिकट ले रही थी, एक बंदा था, मैं टिकट ले रही हूँ, मुझे लगा कि यार मे बी वो लाइन में आगे है, अब वो टिकट लेकर चला जाएगा. आई रियलाइज़ कि मेरे आगे एक अंकल थे, उन्होंने टिकट ले ली, फिर मैंने भी जाके टिकट ले ली. ये बंदा लाइक आई एम नॉट किडिंग, ऐसे हाथ रख के वहाँ पे लीन करते हुए खड़ा ही हुआ है. लाइक ही इज़ नॉट मूव्ड फ्रॉम देयर एंड ही स्मैक इन फ्रंट ऑफ द काउंटर. लाइक यू नो यू आर गोइंग टू हैव टू बी इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद दिस पर्सन अगर आपको टिकट लेनी है. जो बहुत अजीब था यार वो. तो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू इवन से अबाउट इट. थैंक यू. Yeah, the fact is that while the station is very well lit, it feels okay. I'm not feeling extremely unsafe, but स्टेशन पे मैंने रेलवे स्टेशन पे मैंने पुलिस वाले देखे, बट काफ़ी डिस्टेंस पे. जब मर मर के पूरे स्टेशन पे एक कॉप मिला है, कि कॉप नहीं है यहाँ पे. And he's looking here only. नॉट जस्ट दैट, द फैक्ट दैट वहाँ पे मैं नोटिस करी थी कि CCTV कैमराज कितने हैं. आई वॉज एक्चुअली गोइंग एंड आई वॉज वॉकिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड आई वॉज ऑब्जर्विंग कि कितने डिस्टेंस पे लगे हैं. और यार CCTV कैमराज हैं बट काफ़ी डिस्टेंस पे लगे हुए हैं. लाइक इफ़ यू सी द लास्ट वन आई सॉ वाज देयर लाइक एट द एंड, एंड अभी तक मुझे कोई और नहीं दिखा है. एंड एज मच एज आई नो द नेक्स्ट वन इज़ अप अहेड. तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल कि CCTV इतने डिस्टेंस पे लगे हैं, तो क्या हमने फॉर्मेलिटी के लिए लगाए हैं. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टेशन, मतलब दैट एंड वाला बिट इज़ फुल ऑफ मैन. तो आई एंड वहाँ पे थोड़ी लाइट भी कम है. तो आई थिंक दैट साइड आई विल नॉट वांट टू गो. इन द मिडल ऑफ द स्टेशन आई थिंक इट्स गुड, इट फील्स ओके. दैट इज समथिंग आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आई वुड एक्सपेक्ट सम इम्प्रूवमेंट. The good thing about the railway station was that वहाँ पे काफ़ी brightness थी with lights and everything, and वहाँ पे मतलब there was like a line of rickshaws and everything, so it was very convenient. The other good thing is that वहाँ पे free bus service है to get to the Golden Temple, जो वहाँ के ट्रस्ट वाले लोग चलाते हैं. सर ये बस कहाँ जाती है? ये बस जो है यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है सचखंड श्री हरमंदिर साहिब फ्री बस जो है ये श्री दरबार साहिब अमृतसर में जाती है. और ये बस जो है हम संगत यानी कि जहाँ ऑल इंडिया से जहाँ से भी संगत आती है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ये बस उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है. तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो बस है ये 24 आवर सर्विस है. तो अब यहाँ पे नया सिस्टम शुरू हुआ है कि दो बसें अब जो है कंटिन्यू अब यहाँ पे परमिट रख दी गई है, ताकि जो आने वाली संगत है जो दर्शन के लिए आते हैं दिक्कत ना हो और वो आराम से सचखंड श्री हरमंदिर साहब के जो है दर्शन कर सकें. रेलवे स्टेशन में कोई पब्लिक टॉयलेट का साइनेज नहीं था, बट वेटिंग रूम का था, तो आई एम अज्यूमिंग वेटिंग रूम में टॉयलेट्स होंगे. So I was going to Ranjit Avenue and I was like, अगर मैं रंजीत एवेन्यू जा रही हूँ तो I can't go in Indian. I wanted to switch, so I switched to a western outfit. And या पता मैं जब रंजीत एवेन्यू पहुँची तो I was actually on a call.
I was on a work call and I was just walking around on that call and I didn't realize कि actually there were people staring at me and there was actually एक बंदा था गाड़ी में जो मुझे genuinely follow कर रहा था और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था. At first I thought maybe वो he is maybe waiting for somebody, looking for somebody, पता नहीं. But then I realized कि वो बंदा बेशर्मों की तरह बेहया बेशर्म आदमी. It's so pissing off, it's so disappointing that इतना ढीठ किस्म का आदमी कि मेरे सामने आके गाड़ी रोकी उसने और वो हिला नहीं. And I have stood there waiting to see ये कितनी देर तक ये कंटिन्यू करेगा. बंदा घूम के आ रहा है. वहाँ पे एक बंदा खड़ा है जो तो कॉल पे था, वो भी इधर आके खड़ा हुआ. बहुत हिम्मत थी वो आदमी में. डर खौफ कुछ भी नहीं था बिकॉज लिटरली साइड में थोड़ी ही डिस्टेंस पे एक पुलिस की वैन थी. अगर मैं चाहती तो मैं जाके उनको कंप्लेंट कर सकती थी. एंड दिस गाय डिड नॉट फियर एट ऑल, विच वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक. गाड़ी से उतरा है और वो रुका है और वो बैठ के देखता रहा है मुझे. एंड देयर वाज जीरो फियर. मतलब जरा शर्म हया इज्जत का डर खौफ कुछ नहीं है. तो मैंने ये सोचा कि चलो अगर मुझे इस जगह से एस्केप करना है, निकलना है, व्हाट डू आई डू. एंड आई लुक्ड अवे एंड आई लुक्ड एट द मेन स्ट्रीट, द मेन रोड एंड आई रियलाइज कि मुझे आते जाते एक रिक्शा नहीं दिखा है फॉर अ गुड 20-30 minutes during the time that this guy was following me around in that cramped small area. And then I started, and then I think I somewhere went into a spiral because I looked at other things and I realized वहाँ पे genuinely dark spots थे, construction buildings थे, which were absolutely dark, deserted. There was an alley which was dark and deserted. Anything could have happened and I don't think the people there were vigilant enough to even realize वहाँ पे क्या हो रहा. Okay, interesting insight. I don't see as many women here as I see men. और ये गड्डियों में लौंडे जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है. Also यहाँ पे in the middle of this clubbing area there is a construction site which is काफ़ी deserted if you think about it. Like okay, look behind me. ये building और ये building ये completely deserted है और यहाँ पे ये खाली एरिया भी है मेरे पीछे. तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ और आगे भी है बाय द वे, आगे भी खाली स्ट्रीट्स मतलब खाली बिल्डिंग्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन. तो अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसका क्या. जब भी किसी क्लब या किसी ऐसे स्पॉट पे जहाँ पे लेट नाइट का कल्चर हो, वहाँ पे ऐसे डेजर्टेड एरियाज या डेजर्टेड गलीज या कुछ भी ऐसा होता है, इट इज़ वेरी स्कैरी फॉर अ वुमन टू सॉर्ट ऑफ गो इन अ प्लेस लाइक दैट. क्योंकि फिर इंस्टेंट थॉट आता है कि यार अगर कुछ हुआ तो यहाँ पे तो कोई आवाज़ भी नहीं सुनेगा. I think that really in some ways it just really took a toll on me. yaar. Like if you're a woman late in the night at a spot like that, what do you do? Like how do you sort of get yourself out of there? I think if you're going to Ranjit Avenue alone as a woman, I would suggest either you drive down or you book a car or a cab that stays with you so you can get out of there as and when you want. Definitely don't go alone. Like that's my top tip. And please be very aware of your surroundings. Don't be like me, don't be an idiot. Be very aware of your surroundings and try to stay in a well-lit, crowded area versus, especially Ranjit Avenue में जो dark alleyways हैं, जो construction buildings हैं, उनसे थोड़ा दूर रहें is what my advice would be.
प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि अरे सिर्फ दिख के जा रहे हैं. वेरी सैड रियलाइजेशन. दैट्स नॉट हाउ वुमेन शुड बी थिंकिंग. बट एट दैट पॉइंट I was a little surprised कि चलो at least I'm feeling a lot more safer and you know हर जगह पे लाइट है. अंधेरा नहीं है, मैं अंधेरी गलियों में या अंधेरे स्पॉट्स पे नहीं घूम रही हूँ. But then eventually as the night went on, I think I somewhere or the other realized कि नहीं यार, चीज़ें जितना बदलनी चाहिए थी उतना नहीं बदली. So I'm back in my desi outfit to go explore the rest of the city क्योंकि रंजीत एवेन्यू तो हो गया है. अमनदीप मैम हमें ज्वाइन कर रही है 2 AM पे फॉर अ लिटिल टाइम. अमृतसर में देयर इज दिस वेरी नाइस इनिशिएटिव जो ट्रैफिक पुलिस ने स्टार्ट किया है, which is a pick-up and drop service for women to ensure their safety. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो ज़्यादा सिटीज़ में नहीं होता है as much. तो मैम हमें ना आपके इनिशिएटिव के बारे में बताओ. आप लोग पिकअप ड्रॉप करते हो लेट नाइट में, डे में, क्या है मतलब मुझे थोड़ा सा बताओ इसके बारे में. एक्चुअली ये हमारे डीजी पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया था. तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट में है. जैसे रात के समय कोई लेट टाइम जॉब करता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है. जैसे हमारे धार्मिक स्थान है गुरु रामदास गोल्डन टेम्पल हम लोग बोलते हैं, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया. कई मार्केट्स ऐसी हैं जैसे रात को काफ़ी लेट आवर्स तक चलती हैं. तो उनकी सुविधा के लिए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो. बाहर से कोई आता है, किसी कन्वेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम उनको आ जाए तो भी उनको अच्छी मतलब सुरक्षित जगह जो सेफ और सिक्योर हो वो जगह प्रोटेक्ट करवाती है वो टीम, जिसमें हमारे एक ASI हैं जेंट्स, एक ड्राइवर है जेंट्स, 3 हमारे लेडी कांस्टेबल हैं. और इसी के साथ वो 112 जो हमारी हेल्पलाइन चलती है पूरे पंजाब में चलती है, उस पर भी कंप्लेन आती है. उनके जो टैब हैं उनके ऊपर कंप्लेन आती है. कहीं पर भी किसी को वो 112 पे जब कंप्लेन आती है कि वहाँ पर कोई लड़की अकेली है, उसको डर लग रहा है या किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, जिसको चाहे 100% तो लेडीज़ ही हैं, मगर किसी जेंट्स को भी या छोटा बच्चा भी हो तो उसको फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम हो तो एनी टाइम वो इनिशिएटिव लेके उनको किसी सुरक्षित जगह पे हम लोग पहुँचाते हैं. वो हमारी टीम मतलब 24/7 लगी रहती है. एज अ टूरिस्ट या एज अ वुमन, जैसे अब रात को भी हम लोग निकल जाते हैं, तो क्या आपका क्या रिकमेंडेशन अगर औरतें या टूरिस्ट रात को निकल रहे हैं तो उनको किस चीज़ को लेके केयरफुल रहना चाहिए? वो तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है ना. जनरल साइकोलॉजी हर एक की रहनी चाहिए कि अगर उनको को लगता है भी अननेसेसरी क्यों बाहर जाना है ना, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना चाहिए. वैसे कोई ऐसी भी हमें ट्रैवल नहीं करना चाहिए. टूरिस्ट का क्या रहता है, कोई स्नैचर आता है उनका को बैग स्नैच कर लेगा या मोबाइल कर लेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है. तो नॉर्मल जो हमारे सिटीज़न है इधर के रहने वाले हैं कहीं पे भी जा सकते हैं. सिटी एरिया इनसाइड हर एक जगह पे अच्छी लाइटनिंग है. कोई भी ऐसा एरिया नहीं जहाँ पे वो अवॉइड करें, और फिर भी वो अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर रखें कि मैं किधर को जा रहा हूँ और कौन सा एरिया अच्छा है. औरतों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हिसाब से क्या बदलाव देखा है अपने पिछले 10 साल में? जैसे जो समा आगे बढ़ता है तो उसके साथ अवेयरनेस और नॉलेज हमेशा ही बढ़ती है. पहले हो सकता है थोड़ी पुलिस फोर्स में जो एक शार्प माइंड और इंटेलिजेंट माइंड और नॉलेज वाला माइंड की थोड़ी कमी हो, पर अब के दौर में जैसे मैं देख रहा हूँ हमारे कांस्टेबल रैंक से लेके हमारे कांस्टेबल भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो सीनियर लेवल तक जो पहुंचते हैं वो तो उनको तो तजर्बा होता ही है. तो थोड़ी एक एजुकेटेड पुलिस फोर्स है. तो एजुकेशन से मतलब यही रहता है वो सेंसिटाइज रहते हैं वुमेन के प्रति भी, कैसे डील करना है, उसको कैसे करना है. और जैसे अमृतसर में है स्पेसिफिकली हमने अपनी पुलिस फोर्स को रेगुलर मीटिंग्स में, और जैसे मैं हूँ अपने नीचे तक उनको गाइडेंस की है पूरी. उनको एक लेसन, एक टीचिंग है उनको भी. स्पेसिफिकली अगर कोई सीनियर सिटीज़न आता है, अगर वुमेन कोई आती है, कोई छोटा बच्चे के साथ कोई आता है, उनको कैसे डील करना है. तो हमारी स्पेसिफिकली लेडी फोर्स थाने में भी हाज़िर रहती है. हमारी पंजाब पुलिस महिला मित्र है, वो हर एक थाने में उनकी तैनाती है. तो जो थोड़ी पहले पुलिस फोर्स थी
हो सकता है उसमें ऐसा कोई कमी हो, उनकी कुछ सेंसिटाइजेशन में उनको थोड़ी कमी हो, कि उनको वुमेन के प्रति कम हो। जैसे आप बोल रहे थे कि वो वुमेन हिचकिचाती हैं, अभी थाने में जाएं, ऐसे ना जाएं, पर अब के समय में जो बहुत पुलिस फोर्स जो है वुमेन फ्रेंडली है, सेंसिटाइज है उनके इश्यूज़ के रिलेटेड। तो ऐसी बिल्कुल अभी वो एक बिग चेंज है। हम यहाँ अमृतसर के बस डिपो आए हैं और ये पूरा एरिया सुनसान पड़ा है, बसेस पार्क्ड है और आसपास एक इंसान नहीं दिख रहा है मुझे। When I first entered the bus stand, the first thing I noticed was कि यार वहाँ पे बहुत अंधेरा था और बहुत सारी बसेस खड़ी हुई थी लाइन में। एंड माई फर्स्ट थॉट वाज कि इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं इस कंट्री में कि अगर हमारे पास बसेस खड़ी हैं ऐसे खुले में और वो ओपन है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस। तो मैंने एक्चुअली जाके द फर्स्ट थिंग आई हैव डन इज जेन्युइनली गॉन एंड चेक द डोर्स ऑफ सो मेनी बसेस टू मेक श्योर दैट ये खुला तो नहीं है, लाइक देयर शुड बी नो वे टू गेट इनसाइड, लाइक आई नीडेड टू नो दैट फॉर माय ओन सैनिटी। एंड द फैक्ट दैट हमारे कंट्री में इतने इंसिडेंट्स हो चुके हैं बसेस में, अब अगर बसेस इतना इजीली एक्सेसिबल हैं, मुझे वो देखना है। लाइक कैन आई, ओके ये लॉक्ड है, आई थिंक दैट्स गुड। ओके ये भी लॉक्ड है। But there was another entrance to get to the bus stand और मैं जो जिस एंट्रेंस से घुसी थी वो काफ़ी डार्क था एंड आई हैड टू लिटरली वॉक फ्रॉम बिटवीन द बसेस टू गो टू द मेन बस स्टैंड। तो वो गलती मत करना यार, मतलब दैट वाज अ बैड। वो रो क्रॉस करके हम जब अंदर आए हैं तब एक्चुअली काफ़ी लेट है, लाइट इतनी नहीं है बट लोग हैं, शॉप्स भी खुली हैं एंड बसेस भी अपेरेंटली चल रही हैं। ओके वहाँ पे एक स्टोर खुला है तो मैं जाके उनको पूछने वाली हूँ कि यहाँ पे रात को बसेस चलती हैं या नहीं चलती हैं। भैया यहाँ पे रात को बस नहीं चलती? लुधियाना वो वाली ना, ये वाली है ना? हाँ हाँ जी हाँ जी। नहीं मैंने उनको बोला कि अंकल मुझे लुधियाना जाना है, अगली बस कब है? तो अंकल बोले ये बस खड़ी है, ये चल जाएगी। देन ही टोल्ड मी कि अगर आपका आधार कार्ड यहाँ का है, आपका मतलब विमेन हु हैव एन आधार कार्ड जिसमें एड्रेस पंजाब का है परमानेंट, तो वो बसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल कर सकती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम और द आवर ऑफ द डे। एंड आई थिंक दैट वाज रियली ग्रेट। इट वाज सो गुड टू हियर दैट वी आर डूइंग समथिंग टू मेक लाइव्स बेटर फॉर वुमेन। तो अब मुझे वॉशरूम जाना, तो मैं कैसे जाऊँगी? ये तो लॉक्ड है। लॉक्ड है तो हमने जाके बोला तो उन्होंने खुलवा के दिया हमें। वॉशरूम की चाबी है आपके पास? क्या हो गया भैया, लात मार के खोल दो, खुलता नहीं है। एंड those public toilets are not usable. Like वो टूटा हुआ था, वहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ था। Like there was I think broken wood, tiles, I don't know anything and everything under the sun. वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। The toilets are dirty, they're stinking. यूज नहीं कितना, बहुत गंदा हैगा, स्मेल नहीं आ रही है। हाँ तो अब हम अंदर जान तक आ तो हाँ तो फिर गॉड फॉरबिड अगर किसी औरत को अर्जेंटली जाना हो और आजू बाजू में कोई ना दिखे जो यू नो कैन गाइड यू कि यार इनसे खुलवा लो या इसके पास चाबी है, एटलीस्ट मेक द सिटी, द टॉयलेट्स, द बेसिक्स मोर एक्सेसिबल टू अस वुमेन। So we're going to rate the city on 5 different parameters.
So I think for public utility, I think out of 5, I would give it a 3. And for infrastructure, the fact that वहाँ पे इतना अंधेरा है, I think it's a 1.5 यार. Yeah, public transport सिर्फ cabs and e-rickshaws नहीं हो सकते for a city, because public transportation is the lifeline of a city, especially a city that has tourists. So I think there needs to be more. So 0.5. Safety. Yeah, so I think, and also the fact that वहाँ पे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, I will give it a 3. Last is civic sense. I think for civic sense, or as I'd rather like to call it, people, society, 3 marks ही दे सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती. I think my overall rating for Amritsar would be